Good evening, class. In last video, we have completed the fifth chapter, and that is the most important chapter. And most of the questions maybe comes in a board exam, so you have to prepare very well. And after that, we are going to start a new chapter of class 12th, and most of the characters also we have studied in class 11th also. Biotechnology, principle and inheritance. Okay, in this chapter we have to study so many things about the biotechnology and their principles. Okay, so before starting we have to discuss that what is the meaning of biotechnology. Okay, so biotechnology is a word which is generally derived from two words. Okay, so biotechnology is a word which is derived from two words. It means that bio and technology. Bio means life, it means living beings, and bio is also considered as biology and technology. We know that what is the meaning of technology. So here we have to start and we have to study the meaning of biotechnology. So first of all, biotechnology word was coined by Karl Elke, and he was the Hungarian engineer, and he introduced this term in 1919. Okay, once again I am repeating because most of the times the questions maybe arises for one word questions. ठीक है, what who is the discoverer or who coined the first time the biotechnology. ठीक है, so biotechnology first of all it is coined by Karl Elke. He was the great scientist and he was a Hungarian engineer. ये हंगरी कंट्री के इंजीनियर थे and he introduced the word in 1990, most important. And generally biotechnology is a special word which is spelled into two meaning. दो मीनिंग से मिलकर बना है, दो वर्ड्स उसमें छुपे हुए हैं. बायो मीन्स लाइफ यानी बायोलॉजी, एंड सेकंड इज टेक्नोलॉजी. बायो और जब टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ मिलते हैं दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द लाइव्स ऑफ लिविंग, नॉट नॉन लिविंग. नॉन लिविंग की बात ही नहीं करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, अगर हम लिविंग की बात करते हैं. सो इन दिस वी हैव टू यूज the different types of living materials, as we have to study DNA, we have to study RNA, we have to study plasmid, so many things we have to study in this chapter. But biotechnology word is totally based on the principle of living beings. Okay, so what is the meaning of biotechnology? Generally biotechnology is a special type of principle in which the living beings produces the more advanced form by alternation of their genetically modified chromosomes and so many things, and we can obtain a hybrid product that is called biotechnology. Okay, once again, biotechnology is a special technique in which we use the living beings to produce more hybrid characters from their primitive types of cells. That is called biotechnology. Suppose अगर यहाँ पे कोई human beings है, ठीक है, इसी के सेल से, इसी के जीन से, इसी के क्रोमोसोम्स नंबर से, इनमें जो टेक्नोलॉजी के कारण हम एक दूसरा ऑर्गेनिज्म या दूसरे चीजों को हम अगर इसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, सो हमें जो नया ऑर्गेनिज्म निकल कर आएगा वो भी लिविंग बींग्स काफी एडवांस फॉर्म में होगा और काफी वेल डेवलप्ड होंगे. दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड कैरेक्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं. ठीक है, सो बायोटेक्नोलॉजी we have to use the living organism to produce more advanced and more developed part, and that is comes in the class of biotechnology. यानी उन्हीं living beings का यूज करके उन्हीं के द्वारा एक बहुत अच्छा और बहुत एडवांस फॉर्म में कोई भी प्रोडक्ट बनाना, that is called biotechnology. Mostly we have to study in recombinant DNA technology. जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में recombinant DNA technology में, वो हम काफी डिटेल से देखेंगे. ठीक है, कैसे प्रोडक्ट का यूज करके मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA सेगमेंट्स ऑब्टेन हो रहे हैं. Okay, so before starting we have to discuss the first of all it is coined by Karl Erke and it is given in 1919 में सबसे पहले इसको दिया गया था, and it is derived by two words. दो words से मिलकर बना है. First biology and second is technology. And we also know that there is a lots of technology systems are generally included in biology, because biology में भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, बहुत सारे टेक्निक्स हमको इसमें डिस्कस करना है. ठीक है, सो these are the principle of biotechnology. It is not application, because so many times the questions maybe arises that what is the meaning of biotechnology. So you have to give me answer in my personal WhatsApp, what is the meaning of biotechnology. And second is most important, and so many times the questions asked in board exams, what is the applications of biotechnology. Here we are going to study the principles of biotechnology, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पूछता है. दैट टाइम यू हैव टू मेंशन द यूजेस ऑफ
बायोटेक्नोलॉजी, नॉट यू हैव टू मेंशन दी जेनेटिक, केमिकल, ब्रांचेस वगैरह, ठीक है, आपको ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस नहीं करना है। यू हैव टू डिस्कस ओनली एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ वो इंप्लीमेंट होते हैं बायोटेक्नोलॉजी, आपको सारी चीजें वही इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इज अ वर्ड which is related to gene, जो जीन से रिलेटेड है, and when we do the alternation with the genes to manipulate from one place to another for one organism to another organism, that is also called as genetic engineering, जहां पे हम जेनेटिक यानी जीन्स की वजह से, क्रोमोसोम्स की वजह से हम जो भी अल्टरनेशन कहते हैं या करते हैं किसी भी एक फर्स्ट पर्सन से, फर्स्ट बॉडी से किसी भी एक सेकंड बॉडी में, सो दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। सेकंड, केमिकल इंजीनियरिंग, व्हेन वी हैव टू डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हेन वी हैव टू डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल सिंथेसाइजेशन प्रोसेस, दैट टाइम वी ऑब्टेन अ न्यू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड द केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम केमिकल की वजह से किसी भी चीजों को तैयार करते हैं एज अ प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स का यूज करके, क्योंकि उसमें जेनेटिक यानी जीन्स होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, बट इंस्पाइट वी हैव टू आल्सो यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, जो केमिकल्स उनको जोड़ेगा, जो केमिकल्स उनको रेस्ट्रिक्ट करेगा, जो केमिकल्स उनको बाइंड करके रखेगा, सो दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप, दो प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड chemical engineering. When the questions maybe arises that what is the main principle of genetic engineering, biotechnology, that time you have to mention there is only two types of principle, genetic and chemical, दो ही प्रकार के प्रिंसिपल, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग, एंड वी हैव डिस्कस वेरी वेल, ओके। सो आफ्टर दैट देयर इज अ सेवरल ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम लोग को पता है कि बायोटेक्नोलॉजी इट इज अ ब्रॉड टर्म एंड विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन अ सिंपल वर्ड, व्हाई, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी आर जनरली यूज्ड इन द सो मेनी फील्ड, बहुत सारे फील्ड में यूज होता है, इट यूजेस इन द ह्यूमन बींग्स में भी यूज होता है, एनिमल्स में भी यूज होता है, सेकेंडरी इनका जो यूज है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर्स में यूज होते हैं, ठीक है, मेडिसिनल में यूज होते हैं, और बहुत सारे मेडिसिनल के साथ साथ वाटर लेवल में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ ब्रांचेस आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को देखते हुए इनके बहुत सारे ब्रांचेस हमारे इंडिया में, हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड में अवेलेबल है। सो वी हैव टू डिस्कस ओनली 4 to 5 ब्रांचेस ऑफ मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी में आज हमको सिर्फ 4 से 5 ही ब्रांचेस डिस्कस करना है, विच इज गिवन इन योर शिवलाल एंड एनसीईआरटी बुक। सो यू हैव टू पे अ मोर अटेंशन। फर्स्टली वी हैव टू स्टडी द ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन मतलब होता है हरा, एंड मोस्टली वी सी द क्रॉप्स आर जनरली ग्रीन इन कलर, और जो क्रॉप्स होते हैं वो हमारे ग्रीन कलर के होते हैं। सो when we do the hybridization of any crops to get or obtain a well labeled and hybrid variety of plants, that is called green biotechnology। जब भी हम किसी पौधे से उसके हाइब्रिड प्रोडक्ट को हम जब बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, वही हमारा ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। इसमें जनरली होता क्या है कि जो हमें प्लांट्स मिलते हैं वो बहुत ही हाइब्रिड वैरायटी के होते हैं, बहुत ही कम समय में तैयार होते हैं, और उनका जो प्रोडक्शन होता है, नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोडक्शन, वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी मीन्स जनरली इट इज अ वेरी रिलेटिवली रेयर, बहुत रेयर यूज होता है, बट जहां पे भी यूज होता है ब्लू मीन्स वी नो दैट आवर अर्थ इज अ टोटली ब्लू प्लेनेट, हमारा अर्थ पूरा ब्लू है। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एंड ऑल्सो वाटर लेवल इज ऑल्सो वेरी हाई। हमारे पूरे एनवायरमेंट में पूरी तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स, ठीक है, और या जब भी ओस आती है, जो भी होती है, तो उस समय भी मॉलिक्यूल्स जो है वाटर टाइप के दिखते हैं। इसके अलावा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सैटेलाइट से जो भी चीज़ें जो कैप्चर होती है, जनरली हमारे अर्थ सरफेस पे वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्स 70%। दैट्स वाई आवर अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू स्काई प्लैनेट। हमारा जो अर्थ है वो ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब भी हम इसे स्काई से सैटेलाइट के माध्यम से देखते हैं, इट अपीयर्स एज अ ब्लू। सो वाई? बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 70% ऑफ वाटर, बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में वाटर है। सो
अगर हम किसी भी एक्वेटिक मोड पे किसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, यानी वाटर के लेवल में हम अगर यूज करते हैं पानियों के लिए, सो दैट इज कॉल्ड द ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। हालांकि ये बहुत अप्रॉक्स और रेयर होते हैं। एंड सेकंड, रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी, वी नो दैट देयर इज अ वंडर एंड एज ऑफ साइंस, एंड इन दिस साइंस वी हैव टू प्रिपेयर लॉट्स ऑफ मेडिसिनल, ठीक है, बहुत सारे मेडिसिन बनाते हैं। कुछ मेडिसिन किसी और से रिलेटेड होते हैं, कुछ ब्लड से रिलेटेड होते हैं, कुछ हार्ट से रिलेटेड होते हैं। सो ऐसे बहुत सारे न्यूमरस मेडिसिन जो होते हैं रोजाना प्रोडक्शंस होते हैं। सो दैट इज कम्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड बायोटेक्नोलॉजी। सो जितने भी मेडिसिनल प्रोडक्शन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेड बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में मोस्टली जो क्रॉप्स होंगे, जो ग्रीन प्रोडक्ट होंगे, दैट कम्स इन द क्लास ऑफ ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं ब्लू की बात करता हूं तो जो वाटर होते हैं, जो एक्वेटिक होते हैं, वो जनरली आपके ब्लू बायोटेक्नोलॉजी होंगे। रेड में मेडिसिनल यूजेस होते हैं, जो मेडिसिन वगैरह तैयार होते हैं, दैट इज कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिनल। और नेक्स्ट स्टेप हमारा व्हाइट। व्हाइट मतलब इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, ठीक है। व्हाइट मतलब होता है कि जो भी इंडस्ट्री बहुत हाई लेवल पे जिसका भी यूज करती है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, उसको हम व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। मोस्टली ये क्रॉप से रिलेटेड है, ये वाटर से रिलेटेड है, ये मेडिसिन से रिलेटेड है, और ये इंडस्ट्रियल यूजेस से रिलेटेड है। एंड दीज आर दी बायोटेक्नोलॉजी ऑफ ब्रांचेस। ये बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एक ब्रांचेस थे, ठीक है। सो नेक्स्ट ब्रांचेस इज आल्सो देयर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स मींस, बायो मींस लिविंग एंड इन्फॉर्मेटिक्स मतलब इंफॉर्मेशन को देने वाले, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इट मींस हियर we have to study the analysis of biological data। यहाँ पे हम biological data का analysis करते हैं। analysis का मतलब होता है when we are going to do different types of practicals, that time the result is generally unexpected। हमको जो result है वो कभी कभी unexpected manner में मिलता है। so we have to do lots of conclusion, lots of analysis method, and that time we get the result of accurate manner। तब जाके हम जब बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें जो रिजल्ट आता है वो अनएक्सपेक्टेड आता है। तो उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो एनालिसिस करते हैं ऑन द प्रॉब्लम्स यूजिंग कंप्यूटेशनल टेक्निक। कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, वी नो दैट कंप्यूटेशनल टेक्निक की वजह से उसमें जो भी लिविंग बींग्स है, जो भी उनकी डाटा है, उन सबको बहुत डिटेल से स्टडी किया जाता है। एंड आफ्टर दिस स्टडी वी गेट द टेक्निक ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि बहुत सारे डिसऑर्डर्स और बहुत सारी कमियां जो है लिविंग बींग्स में आती है। एंड दैट टाइम वी हैव टू डिस्कस एंड वी हैव टू गेट द रेमेडीज फ्रॉम बाय यूजिंग द बायो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्निक, ठीक है। हम इसी टेक्निक की वजह से उनके अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम प्रॉपर वे में एनालिसिस कर पाते हैं। सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स ऑल्सो, बिकॉज so many times bioinformatics questions may be arises from 2 to 3 marks, and questions maybe also comes from the biotechnology. So there is a two types of definitions are hidden in my board. First question is, what is the meaning of biotechnology and what is the meaning of bioinformatics? You have to write down and send me in my personal WhatsApp. And next question is, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज आर देयर? कितने प्रिंसिपल्स है बायोटेक्नोलॉजी के, ठीक है। मे बी 1 मे बी 2, तो सिर्फ 2 ही प्रिंसिपल्स हैं। एक प्रिंसिपल है जेनेटिक और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। ओके, सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बैकबोन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Recombinant DNA technology is the most important. What is the meaning of recombinant? Recombinant. Generally, DNA, we know that DNA is generally found in double helical structures. Okay, and this is the double helical structure, and that is called the DNA. So DNA are generally found in a double helical structure. DNA का जो structure होता है double helical होता है, and it is told by the Watson and Crick, the two great scientists. But recombinant of DNA technology का मतलब होता है when the DNA gets break, that time DNA also gets recombined. DNA recombine भी हो सकते हैं by using the biotechnology principle, that is called the recombinant of DNA technology. When the thread of DNA breaks down automatically by using the ligase enzyme, we can also add or we can also combine, recombine कर सकते हैं। री मतलब
दोबारा, कंबाइन मतलब एक साथ लाना। सो रिकम्बाइन का मतलब होता है डीएनए बाय यूजिंग द डीएनए टेक्नोलॉजी ऑफ रिकॉम्बिनेंट इन बायोटेक्नोलॉजी फील्ड वी कैन ऑल्सो रिकम्बाइन द डीएनए। डीएनए को हम वापस रिकम्बाइन कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो डीएनए होते हैं वो उसको पहले ब्रेक किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, देन वी हैव टू कंबाइन बाय यूजिंग अ लाइगेज एंजाइम, जिसको हम लाइगेज, एक एंजाइम होता है जिससे हम डीएनए टेक्नोलॉजी को ऐड करते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है जब डीएनए वापस आके रिकम्बाइन होके जुड़ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक। ठीक है, अब ये टेक्निक कहता क्या है, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशंस ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक। ठीक है, सो इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए सो फॉर्म्ड जीन, डीएनए में क्या होते हैं कि जनरली जीन्स आर ऑलरेडी अटैच्ड विद द डीएनए इन द क्रोमोसोम्स। ठीक है, सो जीन जो होते हैं एक ऑर्गेनिजम्स के, वो कंबाइंड हो जाते हैं, कंबाइंड विद रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जब भी उनमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें से एक जीन जो है निकल कर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ए से बी में जाकर वो क्या होते हैं, एफ एन ऑर्गेनिजम्स आर कंबाइंड। कंबाइंड होना मतलब ये जीन यहाँ से निकलकर इसके साथ कंबाइन हो जाता है विथ अ रेगुलेटरी सीक्वेंस। जो उनके सीक्वेंस होते हैं, वी नो द बेस पेयर ऑफ एनी डीएनए एंड आरएनए। हमें डीएनए और आरएनए का बेस पेयर पता है, किसमें एडेनिन होता है, किसमें ग्वानिन होता है, किसमें थायमिन होता है, किसमें साइटोसिन होते हैं। ठीक है, सो जब वो किसी अनदर ऑर्गेनिज्म के साथ वो जीन जब अटैच हो जाते हैं, एंड दिस जीन इज कॉल्ड चिमरिक जीन। इसको हम लोग चिमरिक जीन के नाम से भी जानते हैं, बहुत लोग इसे किमरिक जीन के भी नाम से जानते होंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई, बिकॉज समटाइम्स द क्वेश्चंस में बी अराइजेस दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किमरिक जीन, किमरिक जीन का मतलब क्या होता है। सो वंस अगेन इसके दो वर्ड्स हैं, जैसे हम लोग केमिस्ट्री को केमिस्ट्री भी बोलते हैं और केमिस्ट्री भी बोलते हैं। सो हियर इज आल्सो, इसको हम किमरिक भी बोल सकते हैं और चिमरिक भी बोल सकते हैं जिन। ठीक है, व्हाई, बिकॉज इसमें से एक डीएनए का जो रिकॉम्बिनेंट पार्ट है वो ऐड हो जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के रेगुलेटरी सीक्वेंस से, उनका सीक्वेंस नहीं चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड द किमरिक जीन, एंड दिस प्रोसेस इज आल्सो कंसीडर्ड एज रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। ये किसी भी डीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। वी विल स्टडी बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर एंड सो मेनी थिंग्स इन नेक्स्ट क्लास। Okay, so after that, what type of principles are generally we obtained by using the principle of recombinant of DNA technology? Suppose we are doing lots of practicals in the biotechnological field. So which types of outcomes we get? हमें किस प्रकार के outcomes मिलेंगे? So what is the uses of recombinant of DNA technology? Why we are doing the recombination of DNA technology? हम इनका use क्यों कर रहे हैं? So we are generally used to obtain the multiple copies of DNA segments. इससे क्या होंगे कि डीएनए अगर रप्चर्स भी होता है, सो वी गेट द मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ डीएनए सेगमेंट। डीएनए के सेगमेंट जो है हमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है टू ऑब्टेन द मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए सेगमेंट। इसका मतलब इसमें हमें डीएनए सेगमेंट के मल्टीपल कॉपीज देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू ऑब्टेन एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम स्पेसिफिक जीन, यानी जो भी जीन ए जीन से बी जीन में जा रहा है तो इसमें जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन होगा जो भी जीन के अंदर होता है वो स्पेसिफिक जीन में, उसकी मात्रा भी हमें पता चलेगी और अमाउंट भी हमें उस पर अप्रॉक्स अंदाजा लग जाएगा। सो दिस इज द टू इंपॉर्टेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, so many importance is also given in your book, so you have to study, but I think this is the two most important. First important of recombinant of DNA technology is, first, by this we can obtain a multiple number of copies of DNA segments. अगर हम DNA recombinant technology का यूज कर रहे हैं तो इससे हम बहुत सारे कॉपीज निकाल सकते हैं किसी भी DNA segments का, and we obtain an ample amount of protein from specific gene, यानी जो भी हमारा स्पेसिफिक जीन था उस पे जितना भी प्रोटीन ऑब्टेन होता है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम रख सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर अबाउट द कंक्लूजन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। टिल देन, व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू, you all have to take a very serious and study very well. Okay, thank you students.